Hello students, so today we are going to start our chapter number 8, 3 feathers. यानी आज हम feathers के बारे में पढ़ेंगे. feather मतलब पंख. Once upon a time there was a king who had 3 sons. 2 of them were clever and intelligent, but the third one did not talk very much, was simple-minded, and the only name they gave him was a simpleton. तो देखो जो किंग है उसके 3 बेटे होते हैं, उसमें से जो 2 है वो तो बहुत ज़्यादा चालाक और शातिर होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, पर जो तीसरा होता है वो इतना ज़्यादा नहीं बोलता किसी से, बहुत ही शांत रहता है, इसीलिए उसको क्या बोलते थे, सिंपलटन. When the king became old and weak and thought that he was near to his death, he did not know which of his son should inherit the kingdom after him. So he said to them, "Go forth, and one of you who will bring me the finest carpet, he shall be the king after my death." तो जैसा कि जो किंग है वो धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ रही थी, वो बूढ़े हो रहे थे, तो वो बोलते हैं कि तुम में से जो ही सबसे अच्छा मुझे कारपेट ला के देगा उसी को मैं अगला किंग बनाऊंगा. So there would be no dispute among them. He led them to the front of his castle and blew 3 feathers into the air and said, "As they fly, so shall you go." तो वो 3 feathers ऐसे हवा में उड़ाते हैं और बोलते हैं कि देखो जैसे ये feathers उड़े हैं वैसे ही तुम भी जाओ. The one feather flew to the east and the other to the west, and third feather flew straight ahead, falling quickly to the ground after going only a short distance. तो उसमें से जो एक कौन सा है, एक feather इधर जाता है, एक feather इधर, और एक जाकर कहीं पर सामने ग्राउंड में गिर जाता है. The one brother went to the right, the other to the left, and they laughed at the simpleton who had to stand there where the third feather had fallen. तो उसमें से एक भाई तो इधर जाता है, एक इधर, और वो उस भाई पर हंस रहे थे जो feather वहीं पर जाकर गिरा था. The simpleton sat down and was sad. तो वो वहीं पर बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है. Then he suddenly noticed that there was a trap door next to his feather. तो वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसके feather के पास एक ट्रैप डोर रखा है, यानी कोई जाल बिछा हुआ है. He lifted it up, found a stairway and climbed down inside. तो वो उसको उठाता है, वो देखता है कि वहाँ पर staircase यानी सीढ़ियाँ हैं और उसके अंदर वो जाता है. He came to another door and knocked on it, upon which he heard someone calling out from within. तो वो डोर को नॉक करता है और देखता है, यानी उसमें उसके अंदर से कुछ सुनाई दे रहा है, यानी कुछ आवाज़ें आ रही हैं. Maiden green and small, hopping towards puppy, hop to and fro. Quickly see who is inside. तो वहाँ पर वो देखता है, जैसी आवाज़ आ रही है फ्रॉग्स वगैरह की, तो अंदर जाकर देखता है कि वहाँ पर कौन है. The door opened and he saw a big fat toad sitting there, surrounded by a large number of little toads. The fat toad asked what he wanted. तो जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ पर बहुत ही सारे टोड्स यानी फ्रॉग्स बैठे होते हैं. तो उनमें से एक फ्रॉग पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए. द सिंपलटन आंसर्ड, "आई वॉन्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फाइनेस्ट कारपेट." तो उनसे बोलता है कि मुझे सबसे अच्छा फाइनेस्ट कारपेट चाहिए, तो मुझे क्या तुम देख सकते हो जो सबसे अच्छा और सुंदर हो. देन द फैट टोड called to a young toad, saying, "Maiden green and small, hopping towards puppy, hop to and fro, bring me the large box." तो ऐसे ही वो आपस में बोलते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे जो बड़ा सा लार्ज बॉक्स है वो ला कर दो. The young toad brought the box and the fat toad opened it, then simpleton a carpet from it. तो जो यंग वाला है फ्रॉग वो बड़े वाले फ्रॉग को ला कर देता है, और जो बड़ा फ्रॉग है वो उसमें से एक कारपेट निकाल कर सिंपलटन को देता है. It was so beautiful and so fine, the like of which could never have been woven in the worlds above. तो इतना ज़्यादा सुंदर था कि ऐसा लग रहा था कि आपसे ऐसा कारपेट यहाँ पर नहीं है. He thanked the toad and climbed back out. तो वो टोड को थैंक यू बोलकर वहाँ से वापस आ जाता है. Now the other two thought that their brother was so stupid that he would not find anything to bring home. तो वो बाकी के 2 ये सोच रहे थे कि उनका भाई इतना स्टूपिड है, इतना पागल है कि वो तो खाली हाथी वापस आ जाएगा. Why should we spend a lot of effort looking for a carpet? तुम इतना ज़्यादा एफर्ट करे ही क्यों कारपेट ढूंढने के लिए. They said, so they took some pieces of coarse cloth from the first shepherd's wife they came to and took these back home to the king. तो बोलते हैं कि हम कारपेट ढूंढने में इतनी ज़्यादा मेहनत करें ही क्यों, तो हम ये छोटा मोटा क्लोथ लेकर ही
चले जाते हैं। एट द सेम टाइम दे रिटर्न होम, द सिंपलटन अराइव्ड ब्रिंकिंग हिज ब्यूटीफुल कारपेट। तो उसी टाइम वो दोनों भी वापस घर आ जाते हैं और सिंपलटन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कारपेट लेकर आता है। When the king saw it, he was surprised and said, "It is only right that the kingdom should go to my youngest son." तो किंग हैरान हो जाता है कि ये देखकर कि ये भी क्या है, कारपेट लेकर आ गया। However, the two other sons gave their father no peace, saying that it would be impossible for the simpleton to become king because he lacked understanding in all things. They asked him to declare अनदर कंटेस्ट। वो बोलते हैं कि अब तो इसको ही, यानी ये सबसे छोटा बेटा है, इसको ही राजा बनाया जाएगा। पर बाकी के दो बोलते हैं कि हमने तो ये सोचा था कि ये सब काम नहीं करेगा, तो आप एक और कॉन्टेस्ट करवाइए राजा बनने के लिए। इन्होंने तो सोचा था ये कुछ नहीं करेगा, देखो सिंपल सा क्लोथ उठा कर लिया है, पर वो तो पूरा का पूरा कारपेट लेकर आ गया, यानी जो इन्होंने सोचा था उससे ही बिल्कुल अपोजिट कर दिया। Then the father said, "He who bring the most beautiful ring shall inherit the kingdom." तो बोलते कि जो भी मुझे सबसे सुंदर रिंग ला कर देगा उसी को फिर मैं राजा बनाऊंगा। Leading the three brothers outside, he blew 3 feathers into the air that were to follow. तो फिर से उन्होंने 3 feathers यानी 3 पंख उड़ाए, और जैसे जैसे वो उधर उधर जाएंगे वैसे ही उन बॉयज को भी जाना है। The 2 oldest brothers again went to the east and the west, and the simpleton's feather again flew straight ahead, falling down next to the door in the ground. तो फिर से जो दोनों भाई हैं ईस्ट और वेस्ट में जाते हैं, और सिंपलटन उधर ही जाता है जिधर वो जाकर ग्राउंड पर गिरता है। Once again he climbed down to the fat toad and said he needed the most beautifully. तो वो फिर से वो टोड के पास जाता है और बोलता है कि मुझे सबसे ब्यूटीफुल रिंग चाहिए। The toad had the box brought out again and gave him from it a ring that glistened with precious stones and was beautiful that no goldsmith on earth could have made it. तो फिर से वो टोड उसको एक सुंदर सी रिंग ला कर देते हैं, और वो देखकर खुश हो जाता है, और ऐसी रिंग दुनिया में और नहीं थी। The 2 oldest brothers laughed at the simpleton who was going to look for a golden ring and they took no effort at all. तो अब की बार भी फिर से उन्होंने यही सोचा कि वो तो ऐसे ही चला जाएगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेगा। Instead they dropped the nails out of a wagon ring and brought it to the king. तो उसके बदले में वो एक नेल्स ले आते हैं और वो किंग के लिए लेकर चले जाते हैं। However, when the simpleton presented his ring, king said, "Once again the kingdom belongs to him." तो फिर से वही होता है, वो दोनों ऐसी ही चीजें लेकर आते हैं और सिंपलटन अब की बार भी रिंग लेकर आ जाते हैं। तो राजा बोलते हैं कि देखो फिर से यही राजा बनेगा, यही लेकर आया। The 2 oldest sons tormented the king endlessly until finally he declared a third contest, saying that he who would bring home the most beautiful woman should have the kingdom. तो फिर से वो दो भाई हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक और कराइए। तो किंग अब की बार बोलते हैं कि ये होगा फाइनल कॉन्टेस्ट, इसमें जो बन गया तो वही होगा और अब की बार कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जो भी ब्यूटीफुल वुमेन लेकर आएगा वही इस प्रजा को संभालेगा। विदाउट हेजिटेटिंग द सिंपलटन वेंट बैक टू द फैट टोड एंड सेड, "आई एम सपोज टू टेक होम द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन." तो सिंपलटन फिर से उसे टोड के पास जाता है और बोलता है कि मुझे सबसे ब्यूटीफुल वुमेन चाहिए। ओ आंसर द टोड। तो टोड बोलता है कि अच्छा, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन शी इज नॉट हेयर एट द मोमेंट बट यू शैल हैव हर नॉनथिलेस। तो बोलता है कि अच्छा तुम्हें सबसे अच्छी वुमेन चाहिए, तो फिलहाल तो वो यहाँ पर नहीं है, पर थोड़ी देर बाद वो मिल जाएगी। द फैट टोड गेव हिम अ होलोड आउट येलो टर्निप टू विच वर हंस्ड 6 लिटिल माइस। तो एक उनको टर्निप दे देता है जिसमें क्या है, 6 चूहे होते हैं छोटे छोटे। द सिंपलटन सेड सैडली, "व्हाट एम आई टू डू विद दिस?" तो वो बोलता है कि मैं आखिर इनके साथ करूँगा क्या। द टोड आंसर्ड, "जस्ट पुट वन ऑफ माई लिटिल टोड्स इनसाइड इट." तो तुम्हें मेरे इन छोटे से ऐसे क्या करना है, एक टोड को इसके अंदर रखना है। Then he grabbed one of them from the group and set it inside the yellow coach. तो उनमें से एक को ग्रैब करता है यानी उठाता है और येलो कोच पर रख देता है। The little toad was scarcely inside when it turned into a beautiful young lady, the turnip into a coach and the 6 mice into horses. तो जैसे ही वो उसको रखता है तो जो टोड उसने रखा था वो एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी क्या बनता है, वुमेन बन जाता है। और जो उसमें 6 माइसेस थे वो 6 क्या बन जाते हैं, हॉर्सेस यानी 6 घोड़े बन जाते हैं। He kissed her, raced away with the horses and brought her to the king. तो वो उनको किस करता है और उन सबको लेकर
राजा के पास चला जाता है, यानी अपने फादर के पास। His brother came along afterward. They had given no effort to find a beautiful woman, but simply brought along the first peasant woman they had come upon. फिर से उनके भाइयों ने कोई मेहनत नहीं करी और जो भी उनको पहले वुमेन मिल गई, यानी जो भी उनको लड़की मिल गई, वो लेकर उसको अपने साथ आ गई। After looking at him, the king said, "After my death, the kingdom will belong to my youngest son." तो ये सब देखकर किंग बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद जो ये सारी कौन है, ये यहाँ जो भी संभालेगा वो मेरा छोटा बेटा ही संभालेगा। However, the two oldest sons again defended the king's ear with the cry, "We cannot allow the simpleton to become the king," and they demanded that the preference should go to the brother whose women could jump through the hoop that was hanging in the middle of the hole. तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप आसानी से इसको दे दो, तो जो भी तीनों वुमेन में से अच्छे से होप करेगी, और जो वहाँ पे लूप लगा है, मतलब ऐसा वो बताते हैं कि जो ऐसा करेगा वो उसी को बनाया जाएगा। दे थॉट द पीजेंट वुमेन विल बी एबल टू डू दैट वेरी वेल। तो सोचते थे कि जो हम वुमेन लेकर आए हैं वो उसको आसानी से कर सकती है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट द डेंटी लेडी विल जम्प हर सेल्फ टू डेथ। तो बोलते हैं कि जो ये वाली वुमेन है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर जो ये लेडी है ये तो ऐसा लगता है कूदते ही क्या होगी, मर जाएगी। द ओल्ड किंग गेव इन टू दिस एज वेल। तो किंग ने एक और मौका दे दे, चलो ये भी करके देख लो। द टू पेजेंट वुमेन डिड इंडीड जम्प थ्रू द hoop, but they were so plump that each one fell, breaking her thick arms and legs. Then the beautiful lady that the simpleton had brought home jumped, and she jumped through the hoop as lightly as a deer. तो जो बाकी की दो वुमेन थी वो उस पर गिर जाती हैं, पर जो सिंपलटन जो वुमेन लेकर आया था वो उस पर ऐसे झूल रही थी जैसे कि कोई इतना लाइट, कोई जैसे कि कोई डियर पर हो। तो बहुत ही आराम से वो उसको बहुत ही ज़्यादा इजी था उसके लिए काम करना, और बहुत ही अच्छे से कर पाई। आफ्टर दिस ऑल द प्रोटेस्ट हैड टू स्टॉप। तो इन सब के बाद जो ये क्या था, प्रोटेस्ट चल रहा था, अब इसका रुकने का टाइम आ गया। दस द सिंपलटन रिसीव्ड द क्राउन एंड ही रूल्ड वाइजली फॉर अ लॉन्ग नाइट। तो अब टाइम आ गया था, तो फिर सिंपलटन को क्राउन पहनाया गया, यानी ताज पहनाया गया, उसको राजा बनाया गया, और ऐसे ही उनके बाद, किंग के बाद, उसने बहुत समय तक उस पर क्या करा, वहाँ पर उस जगह पर रूल करा, यानी वहाँ का किंग बन गया। I hope students you understood this chapter. That's all for today. Thank you.